आज की करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले है कि द कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी अमरजीत सिन्हा had its first meeting on Monday and has been giving 3 months to submit its suggestions. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed in 2005 and the scheme guarantees 100 days of unskilled work per day for every rural household. How? Every rural household. ठीक है. Government forms a panel to look into the Manrega's efficiency. Poorer states like UP, Bihar haven't been able to use the scheme optimally to alleviate poverty, while economically better off states like Kerala use it as an asset creation tool, says officials. The Sinha committee has now been tasked to study the various factors behind the demand for Manrega work, expenditure trends, and interstate variations, and the composition of the work. It will suggest that what changes in focus and governance structure are required to make Manrega more efficient and more effective. Manrega was launched as a poverty alleviation instrument for the rural region, providing them with a safety net in the form of a guaranteed 100 days in a year, in a month. Sorry, 100 दिन का in a year, 100 days work in a year. ठीक है. तो बेसिकली स्कीम मनरेगा के ऊपर जो है कमेटी बना दी गई है, सिन्हा कमेटी. ठीक है. तो जो सिन्हा कमेटी रिपोर्ट है, अमरजीत सिन्हा कमेटी जो है, अब ये जो है एनालाइज करेगी मनरेगा को. ठीक है. जैसे कि केरला में जो है मनरेगा का यूज़ करके इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, लेकिन यूपी और बिहार में वो रिजल्ट नहीं आया है. तो ये कमेटी एनालाइज करेगी कि क्या ऐसा क्या किया जाए कि मनरेगा का मोर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके यूपी और बिहार में. ठीक है. अब मनरेगा जो सिन्हा कमेटी है वो मनरेगा का वर्क के बारे में क्या फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेगी. एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स क्या हैं और इंटरस्टेट वेरिएशंस क्या हैं उनके बारे में स्पेंड करेगी. नेक्स्ट है फिफ्थ हाईलाइट. ठीक है. several states including some governed by the BJP on Friday urged the center to rein in its reliance on raising revenues through cesses and surcharges that reduce their share in the divisible pool of taxes. They also sought greater fiscal support to help revive the economy and reiterated demands for extending the goods and services tax compensation period. These issues about the federal fiscal framework were flagged along with the state's local project wish list at a consultation meeting for the union budget for 2023-24, steered by Finance Minister Nirmala Sitharaman. Here are attended by chief ministers, deputy CMs as well as finance ministers of the states. ठीक है. तो बेसिकली ये जो न्यूज़ आई है जीएसटी से रिलेटेड है. तो जीएसटी के बारे में पढ़ लें कि कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, जीएसटी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. ठीक है. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और बेसिकली डिविजिबल पूल को लेकर के अभी और भी टसल्स आएंगी. ठीक है. तो स्टेट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को बोल रही है कि यार हमें जो है और फिजिकल स्पेस दिया जाए. फिजिकल स्पेस देने का मतलब है कि हमें रेवेन्यू में से और ज़्यादा पार्ट मिले, या तो रेवेन्यू में से और ज़्यादा पार्ट मिले या फिर रेवेन्यू और ज़्यादा कलेक्ट करने की छूट मिले. ठीक है. तब नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सॉट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्स टू प्लीज टू अलाउ solemnization of same-sex marriage under the Special Marriage Act. The Special Marriage Act of 1954 provides a civil form of marriage of couples who cannot marry under their personal law. Senior advocates Mukul Rohatgi, Neeraj Kishan Kaushal and Menka Guruswamy and advocate. ठीक है. They argued that this was a sequel of the 2018 Constitution Bench judgment in the Navtej Johar case in which homosexuality was decriminalized. A plethora of living issues arise out of this case. Your lordships have also upheld privacy as a constitutional right in the Puttaswamy case. Mr. Rohatgi said the petition did not touch on the personal law but only sought to make the 1954 Act gender neutral. The Act only says marriage should be between two persons. It does not say it is a union of A and B. ठीक है. तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में
पिटिशन डाली है सेम सेक्स मैरिज कुछ कपल्स ने, ठीक है, कि इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि वो जो एक्ट है वो क्या बोलता है कि इट इज़ अ मैरिज बिटवीन टू पर्सनस, ठीक है, जेंडर की बात नहीं करता है, ए और बी का बोलने का मतलब कि टू पर्सनस की बात करता है। तो टू पर्सनस में फिर उस पॉइंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट से ये मांगा है कि बताओ अपना आपका व्यू क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के, ठीक है। और साथ में पुट्टा स्वामी जजमेंट और नवतेज जौहर केस, ये इनके बारे में तो भाई पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th पेज पर हाईलाइट है कि रशियन स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन रोजाटॉम हैज़ ऑफर्ड अ मोर एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन टू इंडियाज़ लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन एट कुदानकुलाम, which will allow its reactors to run for an extended period of 2-year cycle without stopping to load fresh fuel। ठीक है, अभी जो 18 महीने का है तो अब 18 महीने से जो है दो साल है, 24 महीने का, ठीक है, करने की उन्होंने ऑफ़र की है रोजाटॉम ने, ठीक है। तो रशिया ऑफर एडवांस फ्यूल ऑप्शन फॉर कुदानकुलाम प्लांट। द न्यूक्लियर फ्यूल इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग इन मोर एफिशिएंसी and allow reactors to run for an extended 2-year cycle without stopping. This will lead to sizable savings in foreign exchange। ठीक है, तो 2 साल 18 में से 2 साल होगा, ठीक है। यहाँ भी हाईलाइट्स में नहीं है पर न्यूज़ में था तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 18, तो वो 6 महीने का जो गैप हो गया तो एडवांस फ्यूल है, ठीक है, उसे जो है 6 महीने का टाइम एक्सटेंड हो गया, वो फ्यूल एडवांस्ड है तो ज़्यादा टाइम चलेगा, तो रिप्लेस करने में जो खर्चा आता है, जो सेफ्टी मेजर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो खर्चा जो 6 महीने जो है एक्सटेंड हो जाएगा, वो बच जाएगा 6 महीने का जो है, ठीक है, वो वाली बात की गई है। TVEL हैज़ नाउ ऑफर्ड द मोर मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल whose फ्यूल साइकिल इज अ वॉपिंग 24 months। फिर से वही बात बोली है, हैंस इट विल इंश्योर मोर एफिशिएंट एडिशनल पावर जनरेशन ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर एंड साइजेबल सेविंग्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज नीडेड टू बाय फ्रेश फ्यूल असेंबलीज फ्रॉम रशिया। ठीक है, वही बात रिपीट करके बोली है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल आया कि अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 है उसमें क्या बोला, 2 टाइप्स ऑफ मार्केट्स विल अलाउ कंट्रीज एंड कंपनीज टू ट्रेड इन एमिशंस रिडक्शंस। Although many questions regarding the design of these markets were addressed at COP26, discussions on unresolved issues raised concerns about whether these markets would be transparent, led to actual emissions reductions and risk reductions being counted twice by the buyers and the sellers of credits. Such lack of transparency and double counting can open the door to greenwashing. Next, consequently, there was no discussion on Article 2.1c of the Paris Agreement, which seeks to make all financial flow compatible with low carbon developments. Developing countries feared a dilution of attention to developed countries' obligations, while developed countries argue that this article can play a transformative role in mobilizing the trillions actually needed to respond to climate change. Consequently, the element of the financial agenda was deferred but is likely to be raised next year. Next highlight है कि carbon markets are also increasingly featuring इन जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप। JETP क्या होता है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, विच आर JETP क्या होते हैं, विच आर एमर्जिंग एज एवेन्यूज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू क्विकली चैनल फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, JETP क्या होती है, एक चैनल प्रोवाइड करता है टू चैनल फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशनिंग टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी सिस्टम। एज इंडिया एक्सप्लोर सच पार्टनरशिप फॉर इट्स ओन एनर्जी ट्रांजिशन, plans for using carbon credits to enable private investment raise similar risks about the sufficient and predictability of finance, whether it can reach sectors that need more support, and whether this is an attempt by developed countries to offset responsibility. ठीक है, अब नेक्स्ट हाईलाइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 for we the people of India. After being unnoticed for long, the day began to be celebrated as Constitution Day since 2015। ठीक है, तो Constitution Day 2015 से मनाते हैं हम लोग, ठीक है, उससे पहले वही बात बोल रहा है आर्टिकल, उससे पहले नहीं मनाते थे। This day is indeed a historic day for the nation with the framing of a constitution for the governance of independent India. The freedom of movement, freedom of expression,
freedom to choose a calling of our liking, freedom to buy, sell, and carry on any trade, freedom to wear garments of our choice. All these freedoms emanate from the Constitution in the form of fundamental rights. These freedoms were never available to us before we won independence from the British. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड विद द स्ट्रोक ऑफ ए पेन दैट ऑल इंडियंस आर इक्वल सिटीजन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, estate, education, etc. This is indeed heady stuff for a nation sleeped in religion, rituals, ignorance, and poverty, which gave rise to unacceptable inequalities between men and women, rich and the poor, the literate and the illiterate, the learned and the laity. Setting aside all these aberrations, the Constitution put everyone on an even keel, even while providing a level playing field for the weak and the meek. The Constitution is a holistic doctrine. Rights bring responsibility with them. There is a chapter on fundamental duties in part 4A of the Constitution. ठीक है, तो fundamental rights part 3 में आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 में आते हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पार्ट 4A में आते हैं, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ मैं, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम. How beautiful this sentence would have read had the state been replaced by society. Has any parent thought along these lines while raising their child and teaching them good manners as values? The values we teach are essentially damaging to the mind, such as become a doctor or an engineer and get a hefty dowry. Our ancient text teaches that the Vasudev Kutumbakam, which means the entire humanity is one large family. Every man is related to every other person. We should first learn to treat fellow Indians as a fraternity. We will know this only if we care to open the first page of the Constitution. For this, we need a copy of the Constitution, and it costs less than a movie ticket these days. As part of the curriculum, unfortunately, there is hardly any focus on the Constitution at the school level, not to speak of tertiary education. The Constitution should get due recognition across the education system. Celebrating 26 November as Constitution Day is fine, but we should not restrict ourselves to symbolism. We should look at the substantive issues dealt with by the Constitution, thereby enriching our life. ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या आता है जी? Constitution Day 2015 से मनाते हैं हम. आर्टिकल जो है 26 नवंबर को लेकर के आया हुआ है. आज 26 नवंबर है. ठीक है, कि क्या महानता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है. ठीक है, तो बेसिकली जो आखिरी में जो आर्टिकल 15 से 8th हाईलाइट जो है, इसके आर्टिकल 15 के पहले डेफिनेशन दी है. ठीक है, कॉपी पेस्ट है. ठीक है, ये तो रटी होनी चाहिए, विदाउट अ डाउट रटी होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि इसमें एक ऑप्शन है द स्टेट. स्टार्टिंग में आर्टिकल 15 क्या बोलते द स्टेट. तो जो आर्टिकल लिख रहे हैं उनका मानना ये है कि द स्टेट की जगह अगर हम सोसाइटी भी डाल दें, ठीक है, तो सोसाइटी की स्टेट के साथ साथ जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो बच्चों में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ डाले. और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेनी है तो आज मूवी टिकट्स 500, 550, 1000 रुपये के आते हैं. ठीक है, उतने का यार आपको कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी मिल जाएगी. आर्टिकल बोलने जो लिखने वाले हैं उनका ओपिनियन है. तो यार वो कॉपी लेना मेरे ख्याल से कोई बहुत महंगी चीज़ नहीं है, अगर एक कोई बंदा मूवी की टिकट भी लेता है तो. ठीक है, और बेसिकली बोला कि लास्ट 10th हाईलाइट में ये बोला हुआ कि करिकुलम में जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहीं होती नहीं है. इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सेकुलरिज्म की बात नहीं होती है. टर्शरी एजुकेशन को क्यों देखें हम, कॉलेज एजुकेशन को क्यों देखें जब प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे है तो है, हम NCERT में पढ़ते तो हैं, लेकिन एम्फोसिस नहीं है. 10th 11th में क्यों नहीं एम्फोसिस. माना अगर आप डॉक्टर और माना आपने मेडिकल और नॉन मेडिकल लिया हुआ है या किसी भी ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड के हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए टॉपिक, जो ताकि लोगों को पता लगे यार कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स क्या हैं और राइट्स के साथ हम लोगों की ड्यूटीज़ क्या हैं. ठीक है, दो फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट. मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को अगर हमारे इन्फ्रिंज होंगे, कोई इन पे रुकावट आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं. लेकिन
और हम मानना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे नहीं है, ये बात तो लागू नहीं होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे बात लागू नहीं होती है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए जागरूक सिटीज़न, ठीक है, एक जागरूक इंसान, एक जागरूक नागरिक के लिहाज से हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने समाज के प्रति कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ अपना योगदान दें। तो योगदान कैसे होगा? जब हम अपनी कुछ ना कुछ फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि जो हमारे कर्म हैं संविधान में दिए हुए, उनको समझें, ठीक है। ये बोलता है भी आर्टिकल। अब पेज नंबर 8 में है कि असम बॉर्डर फायरिंग इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सेज मेघालय, ठीक है। तो मेघालय ने ये बोला हुआ है। तो इसके बाद थर्ड हाईलाइट आती है कि सेकंड हाईलाइट अलग न्यूज़ है, फर्स्ट और थर्ड रिलेटेड है। थर्ड आती है कि वाइल हाई लेवल टीम मेट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन अरुण कुमार मिश्रा इन न्यू दिल्ली, स्टेट कैपिटल शिलोंग मेघालय की है, वाज शट डाउन बाय प्रेशर ग्रुप्स। देखो प्रेशर ग्रुप्स ने शट डाउन कर दी भाई। अभी मेंस में प्रेशर ग्रुप्स का टॉपिक जो है, ठीक है, जीएस मेंस में जो है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग्स एंड डिमांड एंड द हैंडिंग ओवर द असम शूटर्स टू मेघालय फॉर ट्रायल, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मीकांत की बुक में भी दिया है, वैसे पता होना चाहिए वो प्रेशर ग्रुप कौन कौन से हैं। थोड़ा सा आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा कि एक प्रेशर ग्रुप का नाम पता होना चाहिए, एक दो का, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो भी मेंस में डालने के लिए, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है। एनएचआरसी के बारे में पढ़ लें, अरुण कुमार मिश्रा जी तो हैं ही हैं चीफ से, लेकिन उसके अलावा जो चीफ होता है उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनको रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है, ये मेन पॉइंट होते हैं। उनकी रिटायरमेंट एज क्या है, एनएचआरसी कब स्थापित किया गया, कौन से एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की नहीं है, ठीक है। ये तो भाई खुद एक्टिव होकर आपको खुद करना पड़ेगा भाई, खुद करेंगे ज़्यादा ध्यान रहेगा। कराने को तो हम भी करा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आता है फोर्थ हाईलाइट में कि लचित बोरफुकान्स bravery underlines the identity of Assam and his life was a lesson that neither nepotism nor dynastic politics, ठीक है, but the nation was supreme. Prime Minister Narendra Modi said at the closing ceremony of the year-long celebrations commemorating the 400th birth anniversary of the 16th century Assam General here on Friday, ठीक है। तो लचित बोरफुकान कौन थे? वो 16वीं शताब्दी के असम के जनरल थे, ठीक है। तो उनके रिलेटेड जो है प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी है। अब सेकंड हाईलाइट आते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज विद नेम्स विच हैव रिलीजियस कॉनोटेशंस लिमिट देयर इलेक्टोरल अपील्स टू वन पर्टिकुलर ग्रुप एंड दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द पार्टी, द इलेक्शन कमीशन हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट। द टॉप poll body's view, मतलब इलेक्शन कमीशन व्यू, came in its affidavit responding to a petition to cancel the symbol or names allotted to the political parties which symbolize any religion. But the election commission said some of these parties' names have become legacy names as they have been in existence for decades. Whether the names of these political parties may or may not be disturbed is left open to the wisdom of the Supreme Court. The poll board, ठीक है, the election commission said. The election commission did not agree with the plea to cancel the symbol allotted to political parties with religious connotations. It said such a move would be legally untenable. ठीक है। Symbols are reserved for any recognized national or state party, the election commission said. ठीक है। तो सिंबल्स जो होते हैं वो रिजर्व किए जाते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज और स्टेट पार्टी के लिए, इलेक्शन कमीशन ने बोला, ठीक है। तो बेसिकली जो है अब लोग डिमांड करते हैं कि क्या बोलते हैं, पिटीशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में कि जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं वो सिर्फ एक रिलीजियस पर्टिकुलर ग्रुप को ही, जैसे मान लो कि AIMIM है, कोई भी, मतलब नाम तो लेना ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल के लिए कि कोई भी रिलीजियस पार्टी है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही फोकस करेगी, पर्टिकुलर ग्रुप को फोकस करेगी, तो वो डाल देते हैं कि हाँ जी उससे जो है पैन इंडिया नहीं बन पाती है, ठीक है। बाकी रिलीजन बोलते हैं यार, जो बाकी रिलीजन्स के ग्रुप होंगे बोलने यार हमारे को क्या देंगे ये अगर हम इनको बना देंगे तो, है ना। तो बेसिकली वही टसल चल रही है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चैप्टर पढ़ लें, ठीक है। और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीधा बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा जी, ठीक है, कि उनको सिंबल उनका कैंसिल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और जो सिंबल जो इलेक्शन कमीशन रिजर्व करता है रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट पार्टीज़ के, वो तो रहेंगे स्टेज में, ठीक है। तो बेसिकली
यही फंडा है। अब 9th पेज पे न्यू ड्राफ्ट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बिल इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। ठीक है, ये आर्टिकल ये हेडलाइन है, ये आर्टिकल आया है। प्रीलिम्स में देखो उसका क्या कोई उतना है नहीं, मेंस में भी उसका अगर जब तक नेक्स्ट टाइम तक आ जाएगा ड्राफ्ट को लेकर के, क्योंकि ड्राफ्ट यार अभी आया हुआ है, ड्राफ्ट आया उसमें अभी अमेंडमेंट्स भी होंगी। तो ठीक है, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जो भी ड्राफ्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप पढ़ने को आप एक आधी बार पढ़ सकते हो, ठीक है, कि बेसिकली क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की सोच कर रही गवर्नमेंट, लेकिन ज़्यादा इस पर अभी एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है। 10th पेज पे कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज रेडिंग अ रोड मैप टू स्टार्ट एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वंदे भारत ट्रेन बाय 2025-26, अ सीनियर रेलवेज ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे। द मिनिस्ट्री इज आल्सो वर्किंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज ट्रेन एज वेल एज इंट्रोड्यूस न्यूअर वर्जन विद स्लीपर कोचेज। ठीक है, 2025-26 तक जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है वो टारगेट कर रही है कि वंदे भारत ट्रेन को जो है एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट हाईलाइट है 39% ऑफ सच वीज़ाज वेंट टू इंडियन नेशनल्स फॉर द ईयर एंडिंग सितंबर 2022 अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो वर्क वीज़ाज हैं इंग्लैंड में, ब्रिटिश में जो वर्क वीज़ाज हैं, ठीक है, मान लो 100 वर्क वीज़ा निकाले साल में, तो 100 में से 39% जो वर्क वीज़ाज हैं वो इंडियंस को मिल रहे हैं ब्रिटेन में जाने के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। बार में सेंट्रल लाइकली टू रैशनलाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जब आएगा तब देखेंगे, जब ये रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भाई गूगल कर लें। ठीक है, अभी मैं देखो इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि भाई आप लोग गूगल कर लें, क्योंकि आप लोग एक्टिवली समझने खुद से समझने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे, अगर एक बंदा भी मुझे अगर कमेंट करके बताता कि जी सर आप समझा दीजिए, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँगा। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी आपको समझाने में और वो टॉपिक को कवर कराने में। ठीक है, और मेरी अभी शायद मैं अभी कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि मैं अब नेक्स्ट टाइम से जो भी जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर है, तो जैसे मैंने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दे दी, तो उनमें जो जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, न्यूज़ में आया है, तो उनके बारे में जो पढ़ना ना पड़े, उनके बारे में मैं जो एक अलग वीडियोज़ बना करके एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, कि इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उससे जो है आप दिन में मॉर्निंग में आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ी समझ में आएगी। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके मैं डालूंगा, मतलब एक ही वीडियो में डालूंगा कंप्रेस करके, वो शाम को मैं सोच रहा हूँ अपलोड कर दूंगा। अभी प्लानिंग की जा रही है, अपलोड कर देंगे उसको हम लोग मिलके। तो फिर उसको अपलोड करने के बाद हम लोग शाम को अपलोड करेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर डेवलप होगी। हाँ भाई, मैंने सुबह पढ़ा था, क्योंकि देखो क्या है, सुबह पढ़ोगे ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, अब शाम तक आप सोचोगे, थोड़ा सर्च भी मारोगे, ठीक है, थोड़ा माइंड को आप एक्टिव रखोगे, फिर जब शाम को हम वीडियो निकालेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, और बेटर गेम जो है वो अंडरस्टैंडिंग का ही है। ठीक है, अब लास्ट में आता है कि इरिडाई अलाउज पीई फंड्स टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंश्योरेंस रेगुलेटर इंट्रोड्यूसेस। ठीक है, इन इंश्योरेंस रेगुलेटर यानी कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटर इंडिया का, इंट्रोड्यूसेस स्लीव ऑफ प्रपोजल्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्लूडिंग अलाउिंग promoters to dilute up to 26% स्टेक एंड रेज सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट सैंस अप्रूवल। ठीक है, तो इरडाई ने क्या करा है भाई, थोड़ा सा 26% डाइल्यूट कर दिया हमने स्टेक्स। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो किसमें पीई फंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे इरडाई के बारे में पढ़ लेना जरूरी है, पीई फंड्स के क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि जो है लोग जो है अपना डेब्ट जो है सबऑर्डिनेट डेब्ट मतलब कि जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है। ठीक है, ताकि लोग जो इन्वेस्ट कर सकें। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू।